Hello and welcome to St. Andrew Institute of Technology and Management, Gurgaon. This is online lecture series and I am Rohit Raj from Civil Engineering Department. We are discussing sewage and treatment. Okay. And this is 18th lecture in this course. Okay. And today we are going to start another unit, that is fifth unit in this course, that is sewage and treatment. In which we will study the different methods of sewage treatment. Okay, and in this unit we'll particularly focus on primary treatment processes. Okay, so let's begin with sewage treatment. Okay, so we need to study the basic flows, sheets and unit operations, aim, methods of treatment and various flow sheets of primary, secondary and tertiary treatment, and also preliminary treatment. Okay, so what we are going to study in this unit is, first we have to study the flow sheets and unit operations. Okay, we'll see in coming lectures that what is flow sheets and unit operation. Then we have to study the aim of treatment. Okay, aim of methods of treatment and various flow sheets of, means various flow patterns for that is various unit operations for preliminary, primary, secondary and tertiary treatment. हमारा जो पांचवा यूनिट है उसका सिलेबस है कि हमें इसके बारे में पढ़ना है, यूनिट ऑपरेशंस के बारे में, फिर एम क्या है ट्रीटमेंट मेथड्स के, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, साथ साथ प्रिलिमिनरी, इन चारों के यूनिट ऑपरेशंस और फ्लो शीट्स हमें पढ़ने हैं. क्या स्टेप्स होते हैं, क्या प्रोसेस होता है इनमें, ये सभी हम लोग इसमें पढ़ेंगे. तो पहले unit operation. So first we'll start with unit operation. The treatment of wastewater depends upon the impurities present. Means we will treat wastewater depending upon the amount or extent or quality of impurities that is present. Okay, means for a particular kind of wastewater we have a separate treatment process. Okay, means depending upon the impurities will select the process for the treatment. Okay, the impurities present are physical, chemical and biological, and accordingly the treatment given are physical, chemical and biological. Means impurities may be, that is physical, chemical or biological, affecting that water physically, chemically or biologically. So its treatment may be physical, chemical and biological processes. Okay, so for depending upon the type of impurities, the treatment may be selected. Okay, but it's not obvious that physical impurities may be removed with physical processes or chemical impurities may be removed with the chemical processes. This is not like that, but yes, they may be in physical, chemical and biological phase, but their treatment can be different. Okay, so we just need to know that impurities may be present in any form, that is physical, chemical or biological, and their treatment can be of these three too. Okay, अभी हम लोग यूनिट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ रहे हैं. यूनिट ऑपरेशंस बेसिकली होता क्या है, इसमें हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सा ट्रीटमेंट मेथड, कौन सा ट्रीटमेंट प्रोसेस किसी पर्टिकुलर वेस्ट वाटर के लिए सुटेबल है. जैसे कि अगर कोई पानी बहुत ज़्यादा गंदा है, जैसे कि इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, उसके लिए हमें एक सेपरेट ट्रीटमेंट प्लांट इस्टेब्लिश करनी चाहिए. आइडियली ऐसा जनरली होता नहीं है, लेकिन हमें ऐसा करना चाहिए. आइडियली इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर की जो ट्रीटमेंट होती है वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर से अलग होनी चाहिए. और अगर वाटर में अगर ये सीवेज जो है उसमें रेन वाटर आ रहा है, अगर ड्रेनेज, नेचुरल ड्रेनेज से या फिर रेन वाटर आ रहा है, तो ये रेन वाटर को हमें ट्रीटमेंट नहीं देनी चाहिए. देनी भी चाहिए तो बिल्कुल नॉमिनल ट्रीटमेंट होनी चाहिए.
तो इसके लिए एक अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस हमारा होगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर के लिए अलग होगा और डोमेस्टिक के लिए अलग होगा। और डोमेस्टिक में भी रीजन के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे अलग तरह के केमिकल्स ज्यादा पाए जाते हैं उनके लिए ट्रीटमेंट अलग होगा। तो इस हिसाब से हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी टाइप की इम्प्यूरिटीज के लिए कौन सा पर्टिकुलर प्रोसेस, कौन सी ट्रीटमेंट मेथड हमें इस्तेमाल करनी है। और इसी पर्टिकुलर मेथड और प्रोसेस को हम यूनिट ऑपरेशन से डिनोट करते हैं, यूनिट ऑपरेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो हम आगे अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमें यह भी जानना है कि इम्प्यूरिटीज जो है फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल फॉर्म में अफेक्ट कर सकती हैं किसको, हमारा जो सीवेज है या फिर जो वाटर है, वेस्ट वाटर है। तो इसका ट्रीटमेंट भी इन तीनों मेथड से होता है, जो कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेसेस होते हैं। लेकिन इससे ये ऑब्वियस नहीं है कि फिजिकल इम्प्यूरिटी जो होगा वो फिजिकल मेथड से ही रिमूव हो जाएगा, या फिर केमिकल इम्प्यूरिटी जो है वो केमिकल मेथड से ही रिमूव हो जाएगा। मगर हाँ, ये तीन फॉर्म्स हैं जिनमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट हो सकती है, और ये तीन ट्रीटमेंट प्रोसेसेस हैं जिनसे ये ट्रीट भी हो सकते हैं। इनमें से कोई भी किसी के लिए भी हमें डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट्स हम लोग यूज करने वाले। सो इस टेबल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट, टाइप ऑफ ट्रीटमेंट यूनिट, name of the unit and function of impurity removed. Okay, means its function, that kind of impurity that has been removed using this type of treatment process. Okay, so first we'll see physical treatment, that is its type, that is a type of treatment. Okay, so that unit process, the treatment unit may be physical. Okay, so name of the units are screening, grid chambers or clarifiers. Okay, we have processes as screenings, grid chambers and clarifiers. Okay, these are the physical treatment unit. Okay, means they are the units where physical treatment is carried out. Okay, so these are the physical treatment units, that is screening, grid chambers, clarifiers. Now the function they perform, that is the impurities they remove, are basically in screening what we remove is large suspended and floating matters, while in grid chambers we remove grit. You are well aware of grit. If not, then you just understand for a while. So basically grit is small portions of sand, particles of stone or small pebbles. Okay, these are grit and we remove them using grit chamber. And other is clarifier, that removes silt, sand and other heavier matters. Okay, so in physical treatment process, okay, that is physical treatment unit, we have units namely screens, grid chambers and clarifiers, which perform removal of large suspended particles is removed using screens, then grids are removed using grid chamber, then clarifiers are used to remove silt, sand and other heavier particles. Okay, now we have second type of treatment, that is chemical treatment, and they can also be said as chemical treatment unit, and the name of the units is chemical reactors. Okay, we have chemical reactors, and what they do, okay, they simply remove the dissolved chemicals. Okay, and generally these type of treatment processes are included in the wastewater that contain industrial wastewater, that is when water is discharged from industries. Okay, so they require only chemical treatment, because in residential building wastewater or domestic wastewater we don't have chemical dissolved in it. Okay, so we don't need to treat them, okay, using chemical reactors. So we have seen the second type of treatment, that is chemical treatment, which can be done using chemical reactors that remove dissolved chemicals. Now third one is biological treatment, and the treatment unit is biological, and they may be trickling filters, activated sludge, okay, rotating biologicals, contractors or digester. These all are trickling filter,
एक्टिवेटेड स्लज, ओके, रोटर और बायोलॉजिकल contractors or digester. These all are what? Biological treatment units. Okay, biological treatment units that perform biological treatment. Okay, and its main function of removing dissolved organic chemicals means we have a process for suspended removal, suspended particle removal, that is in primary treatment. But for dissolved organic chemicals or impurities, we have secondary treatment, that is biological treatment, where we use trickling filters, activated sludge, or rotating biological contractors and digesters to remove the dissolved organic chemicals. हम सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में एक चार्ट से पढ़ने वाले हैं, जिस चार्ट में हमें टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट यूनिट्स के नाम और उसकी फंक्शन, जो कि किस तरह के यूनिट्स को वो रिमूव करता है, ये पढ़ना है। तो पहला हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें कौन कौन से यूनिट इन्वॉल्व होते हैं। पहला है स्क्रीन्स, दूसरा है ग्रिड चैम्बर, तीसरा है क्लैरिफायर्स। ओके, सो ये फिजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस में इंक्लूडेड है। ये यूनिट्स को हम लोग फिजिकल ट्रीटमेंट यूनिट्स भी कहते हैं। इन यूनिट्स से हमें क्या रिमूव करना होता है, ये हमें जानना है। तो पहला, अगर हम लोग स्क्रीन्स की बात करेंगे तो ये लार्ज सस्पेंडेड फ्लोटिंग मैटर्स, मतलब ये बड़े बड़े जो मतलब फ्लोट करते रहते हैं इम्प्यूरिटीज, उनको रिमूव करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्रीन, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, ठीक है, और भी अदर फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज, ओके, उनको हम लोग स्क्रीन से रिमूव करते हैं। दूसरा है हमारा ग्रिड चेम्बर। ग्रिड मतलब छोटे स्टोन के कण, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े, इनको रिमूव करने के लिए हमारे पास एक फिजिकल ट्रीटमेंट यूनिट है जिसे हम ग्रिड चेम्बर कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो है हमारा क्लैरिफायर है। इसमें सैंड और सिल्ट को हम रिमूव करते हैं। तो हम लोगों ने तीनों को देख रखा है। स्क्रीन्स हमें यूज करना है लार्ज फ्लोटिंग पार्टिकल्स के लिए या फ्लोटिंग सस्पेंडेड मैटर्स के लिए। दूसरा हमें ग्रिड चैम्बर पड़ा। ग्रिड चैम्बर ग्रिड रिमूव करता है। ग्रिड के बारे में है आपको पता हो तो ये पत्थरों के छोटे कण होते हैं। तीसरा है हमारा क्लैरिफायर। क्लैरिफायर बेसिकली सैंड और सिल्ट रिमूव करता है। इसके बाद हम दूसरे टाइप ऑफ ट्रीटमेंट में पहुंच जाते हैं, वो है केमिकल ट्रीटमेंट। केमिकल ट्रीटमेंट का एक यूनिट है केमिकल रिएक्टर। इसका काम होता है डिसॉल्व केमिकल्स को रिमूव करना। अब डिसॉल्व केमिकल किस तरह से रिमूव हो सकते हैं? डिसॉल्व केमिकल हमें केमिकल रिएक्टर्स की मदद से रिमूव करना है। और डिसॉल्व केमिकल किस तरह के वेस्ट वाटर में पाए जाते हैं, ये भी आपको जानना चाहिए। जनरली इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है कि हम अलग अलग तरह के वेस्ट वाटर के लिए अलग अलग ट्रीटमेंट प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं। उसी रेफरेंस में मैं ये कहना चाहूंगा कि डिसॉल्व केमिकल जनरली रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में नहीं होते, ये जनरली इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में होते हैं। इसलिए जो हम यूज करेंगे केमिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस यूजिंग केमिकल रिएक्टर्स, ये जो केमिकल रिएक्टर्स का हम इस्तेमाल करेंगे डिसॉल्व केमिकल को रिमूव करने के लिए, ये हम तभी करेंगे जब हमारा जो सीवेज है, जो वेस्ट वाटर आ रहा है, वो उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर भी इंक्लूडेड है या फिर सिर्फ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है, क्योंकि वहीं पे केमिकल डिसॉल्व रह सकते हैं। तीसरा जो हमारा प्रोसेस है वो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में जो यूनिट्स हैं वो है ट्रिकलिंग फिल्टर, एक्टिवेटेड स्लज, ओके, और रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्टर्स, और आखिरी में डाइजेस्टर। ये यूनिट्स हैं, ये वो प्रोसेसेस हैं, ये वो प्लांट्स हैं, ये वो सेटअप है जिनकी मदद से हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं। और इससे हमें रिमूव क्या हो पाता है हमारे वेस्ट वाटर से? डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक केमिकल्स, मतलब सस्पेंडेड तो हम लोगों ने पहले रिमूव कर रखा, तो अब जो डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक केमिकल्स है वो हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट से रिमूव करते हैं। इस डायग्राम से आप और क्लियर समझ पाएंगे। प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में हमें क्या होता है, हम केमिकल कुछ ऐड करते हैं, ओके, जो कि पंप स्टेशन के पास ही हमें इसे ऐड करना है,
उसके बाद एक स्क्रीनिंग होता है, बेसिक स्क्रीनिंग, ओके, वो हम इसे ट्रैश को लैंड फिलिंग में कर देते हैं, फिर ये ग्रिड चेम्बर के थ्रू आ जाता है। ये जो प्रोसेस है ये प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का पार्ट है, जिसमें हम केमिकल ऐड करते हैं, फिर स्क्रीनिंग होता है और ग्रिड चेम्बर से सेपरेशन होता है। ये हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। उसके बाद हम प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का प्रोसेस है। उसके बाद हमारे पास आता है प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हम सेडिमेंटेशन टैंक प्रोवाइड कराते हैं, जिससे फिर जो सेटल्स वेस्ट है उसको हम क्लियर करते हैं। उसके बाद फिर फाइन स्क्रीनिंग आता है। ये बार स्क्रीनिंग है और ये फाइन स्क्रीनिंग है। आप डिफरेंस समझ सकते हैं। इसके जो थ्रेड्स होंगे, जो स्पेसिंग होगी, दो गैप्स जो होंगे वो ज्यादा होंगे इसके कंपैरिजन में। तो अब जो छोटे पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग क्लियर करते हैं फाइन स्क्रीनिंग की मदद से। फिर उसके बाद हमारा बायो रिएक्टर आता है और उससे जो इम्प्यूरिटीज आती है वो फिर हमारा यहाँ इस पोर्शन में चला आता है। फिर हमारा डिसइंफेक्शन का पार्ट आता है। जनरली हम लोग क्लोरीन ऐड करते हैं और इसके बाद हमारा वाटर जो है रीयूज के लिए चला जाता है पोर्शन, और कुछ इफ्लुएंट के तौर पे हम डिस्चार्ज कर देते हैं नेचुरल ड्रेनेज में। और ये जो सॉलिड वेस्ट जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से आया था, कुछ फाइन स्क्रीनिंग से आया था, कुछ टैंक से, मेम्ब्रेन टैंक से जो आया था बायोलॉजिकल रिएक्टर्स के बाद, इनको क्या करते हैं हम, ये सॉलिड है, इनको हम ग्रेविटी वेट थिकनर से थिक करते हैं। इसके बाद एनारोबिक डाइजेस्टर में छोड़कर इसकी एनारोबिक डाइजेस्ट कराते हैं। उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूजल डिवाटरिंग कराकर इसे लैंड एप्लीकेशन ऑफ बायोसॉलिड्स में छोड़ देते हैं, जहां पे हम इसको लैंड फिलिंग या सैनिटरी लैंड फिलिंग्स कह सकते हैं। ठीक है, ये एक पूरा साइकिल है। आप दोबारा से एक बार समझने की कोशिश कीजिए। हमें पहला जो स्टेप है हमारा वो है प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट, दूसरा है प्राइमरी ट्रीटमेंट, तीसरा है बायोलॉजिकल और मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट, और लास्ट जो है हमारा एंड प्रोडक्ट्स। तो प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप है अगर हमें केमिकल एडिशन करना है तो कभी कभी आप लोगों ने सुन रखा होगा कि हम लोग एक प्री क्लोरिनेशन भी करते हैं। क्लोरिनेशन जनरली डिसइंफेक्शन का स्टेप है जो कि एंड में है यहाँ, लेकिन कभी कभी हम प्री क्लोरिनेशन भी करते हैं, जो कि अगर करना होगा तो हम यहाँ पे करेंगे प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट में। और भी कोई केमिकल्स हम लोग ऐड करते हैं जो कि इस पोर्शन में है, जो कि प्रिलिमिनरी ट्रीटमेंट का पार्ट है, पंप स्टेशन के पास ही। इसके बाद हमारे पास जो अगला यूनिट है वो है बार स्क्रीनिंग, जिससे कि जो ट्रैश निकलेगा वो लैंड फिलिंग के लिए चला जाएगा। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो ग्रिड सेपरेशन है, उससे भी जो ट्रैश निकलेगा वो हमारा लैंड फिलिंग के लिए चला जाएगा। अब हम आते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में। प्राइमरी ट्रीटमेंट में प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक आता है, जो कि प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से जो सॉलिड्स निकलेगा वो हमारा फिर नीचे आ जाएगा, जिसको हम अलग से ग्रेविटी वेल्ट थिकनर की तरफ भेज देंगे। इसके बाद हमारा फाइन स्क्रीनिंग है। फाइन स्क्रीनिंग से भी जो वेस्ट आएगा वो भी सॉलिड वेस्ट की ओर चला जाएगा। इसके बाद हमारा मेम्ब्रेन ट्रीटमेंट यानी सेकेंडरी ट्रीटमेंट यानी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट आता है। और इस बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में हम बायो रिएक्टर्स यूज करने वाले हैं। आइदर आप वो ट्रिकलिंग फिल्टर समझो, या ऑक्सीडेशन पॉइंट समझो, या फिर रोटेटिंग बायोलॉजिकल कंट्रैक्टर समझो, कुछ भी, ये सभी इसके अंदर इंक्लूड है। और इसके बाद जो मेम्ब्रेन टैंक्स होंगे, जिनमें इन प्रोसेसेस की मदद से जो डिसॉल्व पार्टिकल्स जो फाइनली सेटल करेंगे, उनको हम लोग यहाँ से रिमूव करेंगे, और ये सॉलिड पोर्शन जो होगा फिर यहाँ पे इन दोनों के साथ आके मिक्स हो जाएगा। और इन तीनों का हम लोग सेपरेट एक ट्रीटमेंट करेंगे, जो कि उसका पहला स्टेप होगा ग्रेविटी बेल्ट थिकनर। उसके बाद फिर वो एनारोबिक डाइजेस्टर्स में चले जाएंगे, जो कि सेप्टिक टैंक्स भी हो सकते हैं। उसके बाद ये फिर इसमें डिवाटरिंग करेंगे, इसको हम इस मींस इसकी वाटर की कंसंट्रेशन को घटाएंगे, और फिर इसे हम लैंड एप्लीकेशंस में यूज करेंगे। मींस हम इसको लैंड फिलिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और अदर यूजेस के लिए कभी कभी मैन्योर्स के तौर पे भी इसे हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट का जो सेटलिंग टैंक होगा हमारा SST, सेकेंडरी सेटलिंग टैंक, उसके बाद जो होगा वो डिसइंफेक्शन होगा, जो कि क्लोरिनेशन जनरली हम लोग यूज करते हैं। और भी मेथड्स है, सिर्फ क्लोरिनेशन एक डिसइंफेक्टेड मेथड नहीं है। क्लोरिनेशन के अलावे भी हमारे पास मेथड्स हैं डिसइंफेक्शन के। और इससे जो वाटर बनेगा उसको दो तरह के हम क्लासिफाई करते हैं। एक तो वाटर जिसको हम रीयूज के लिए छोड़ देते हैं, और दूसरा
जिसे हम इफ्लुएंट के तौर पे नेचुरल ड्रेनेज सिस्टम में डिस्चार्ज कर देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस जो है हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का है। इसे हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये फ्लो चार्ट आपको याद रखनी है, इसे हर दिमाग में एकदम बैठा लेना है। So now we are about to see the sewage treatment plant, okay, in a flow chart where we'll start with preliminary treatment. That is basically this will include first chemical addition, then bar screening, and third is grit separation. Okay, so preliminary treatment includes chemical addition, bar screens, and grit separation. Okay, we need to add some chemicals before the actual purification starts. There may be sometimes addition of chlorine, that is pre-chlorination. You sometime have heard pre-chlorination and post-chlorination in water supply system also. So sometime we need to add some chemicals before the treatment. That may be done here in preliminary treatment. Then we have a bar screen. Okay, that bar screen may be used for treating large impurities. Okay, so it is a screening where large impurities can be separated. Okay, and the impurities as a trash are released for landfilling. Then we have grit separation, means grit chamber that separates trash, and they are also used for landfillings. Then we enter to primary treatment. Okay, and that primary treatment includes primary sedimentation tank and fine screening. And that primary sedimentation tank includes a tank where suspended particles get settled. Okay, means we allow them to settle in that tank, and then if once they are settled, we remove that or we scratch that off and collect them as solid waste. Okay, and after primary sedimentation tank, we need to design this primary sedimentation tank, and we will design in coming lectures. Till then, we just remember that in primary sedimentation tank, what we do, we just allow our wastewater to settle in this tank here. And after this, we have fine screening. What is this? In fine screening, we will separate the impurities that has passed from this bar screenings. Okay, here we'll filter that smaller size smaller dias waste. Okay, and these wastes are again carried to the solid waste. Okay, now we enter to third treatment unit, that is membrane treatment or secondary treatment or biological treatment. Okay, that may include recurring filters, by rotating biological contractors or oxidation ponds, etc. Okay, anything. And after this treatment or bioreactors in this biological organisms or microbiological organisms treat the wastewater by consuming the dissolved organic nutrients or organic materials present in that. Okay, once they consume this, okay, then we use sedimentation tank again. Okay, this is primary sedimentation tank, and we have here another sedimentation tank, that is secondary sedimentation tank. That tank removes that impurities that has been consumed by the biological reaction processes, and that is used, that is separated from here. Okay, and that is also collected as solid waste. Okay, now these three solid waste, that is first it is removed in primary treatment, that is from primary sedimentation tank. Then it is removed from fine screening. Okay, and also from secondary treatment, that is secondary settling tank. All the three solids are treated specially as solid stream. They are used, they are passed through gravity built thickness and then sent to anaerobic digesters. After this, they are carried to centrifugal. Anaerobic digester may include IM Hoff tanks and etc septic tanks. Okay, then they are carried to centrifugal dewatering, where we reduce the water concentration, and then they are discharged to lands. Okay, that is they are allowed for land fillings. Okay, so this much we have studied secondary treatment. Now another part is
Disinfectant. Disinfectant may include addition of chlorine or other disinfectants. Then water is allowed for reuse, or some portion is allowed for reuse, and rest are discharged as effluent into natural drainage system. So this is all about sewage treatment plant. We will see each of them in detail in coming lectures. Okay, till then, thank you for listening, and feel free to ask any doubt. Okay, you can just contact on this number, or you can just mail on this mail ID. Thank you for listening. Take care.